Hello everyone, welcome back to Some Chemistry channel. In this lecture, we are going to take the questions that is related to isomerism. Okay, so we have done this topic in the class as well. So let us start doing the things again. So here I will give you the brief idea about the symmetrical isomerism, optical isomerism, और इस वीडियो को सुनने के बाद each and everything will be clear in your mind. Fine. So let us start. The first thing that I am going to write here, it is symmetrical isomers of a complex. Whenever you have to find symmetrical isomers in a complex, then we have to take only 2 or 3 things together. Okay, अगर ये आप कर लेते हैं अच्छे से, then each and everything will be easy. See, you have to make the possible combinations of a polymer. Okay, you have to make possible combination of, sorry, ligand. I have started the topic polymer, that's why मुंह से वही निकल गया. Ligand हमारे पास कितने हैं, उनके possible combinations बनाने हैं. If possible combinations in any case or in any compound is 1, एक ही combination आप बना रहे, तो symmetrical isomers are not there, it is 0. If we are having the possible combinations that is more than 1, then GI is there. और जितने combinations आप बनाएंगे उतना ही हमारा GI आ जाएगा. Is this clear to everyone? Okay. So इस तरीके से आपने ये चीज को याद रखना है कि how we have to take the things in GI. GI के लिए you have to make the possible combinations, and उस possible combinations में अगर आप एक सेट बना रहे हैं then 0 isomer, और अगर एक से ज्यादा सेट बन रहे हैं then we are having more number of GI that is associated with our molecule. So in this we are having 3 type of things. Please write carefully कि GI जब आपने देखना है तो we are having 2 type of things. Coordination number 4, coordination number 6. If we are talking about coordination number 4, there are 2 possibilities further. DsP2 configuration है या sp3 combination है. And in the coordination number 6, only one type of configuration is there, DsP2. Okay, DsP2 combination is there. So let us talk about the different type of things that can be present in the different hybridizations. तो यहाँ पे एक चीज आप याद रखिएगा, DsP2 हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, और sp3 वाले आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं. ये किन के केस में बनते हैं ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है. So this work you can do, okay, yourself. अब हमारे पास जो फर्स्ट है that is square planar complexes. Square planar complexes. Okay, so first I am talking about coordination number 4. Coordination number 4 में this is square planar and this is tetrahedral in nature. So we are going to start square planar complexes having coordination number 4. Fine. उसके बाद हमारे पास पहला combination जो यहाँ पे आता है that is Ma4 type. अगर मेटल है, चारों के चारों लिगेंड सेम लगे हैं A4 टाइप के, जितने लिगेंड हैं फर्स्टली मेक अ लाइन बिलो इट, तो राइट डाउन लिगेंड्स A 4 लिखने चाहिए थे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, चारों को अलग अलग लिख दीजिए. जैसे मैरिज के लिए वी आर गोइंग टू फाइंड द सुटेबल मैच कि कौन लड़की को पसंद करती है, वी आर मेकिंग पेयर ऑफ देम. The same way you have to make pair of ligand, इनकी भी आपस में शादी करवानी है, मैरिज करवानी है. Then what you have to do, पहले इन दोनों का करवा देते हैं, इन दोनों का पेयर बना देते हैं. पेयर बनाने के लिए इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, is there any possible combination. अब इसको इसके साथ मैच करवाएं या इसको इसके साथ मैच कराएं तभी तो AAE आएगा. तो only one possible combination is there.
So if one possible combination is there, then no GI is there in the molecule. तो symmetrical isomer यहाँ पे कितने होंगे? 0. No cis trans isomerism is there. For example, if I draw the structure, so please see this: metal, ligand, this is A, this is A, this is A. ये 4 ligand थे मेरे पास, चारों के चारों कॉर्नर पे पड़े हैं. इफ यू आर मेकिंग दिस फिक्स और बाकी सभी को फ्लिप करके चेंज करना चाहे पोजीशंस को, तब भी आपके पास सेम ज्योमेट्री ही पड़ी रहेगी. दैट्स व्हाई नो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज देयर. जीआई का मतलब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, इट नॉट एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूल. तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको अगर आ जाते हैं तो इट इज इजी टू मेक द थिंग्स इन द मॉलिक्यूल. चलिए जी, the second type of combination that we are going to do, it is Ma3B. Ma3B means एक लिगेंड 3 वाली अमाउंट में है और दूसरा लिगेंड हमारे पास कितनी अमाउंट में है? 1 वाली में. तो चेक करिए. फर्स्टली मेक द लाइन बिलो द लिगेंड. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. Here 3A you have to like this. After that you have to make a pair. मैरिज करवानी है इनकी, ठीक है. पेयर बना दीजिए. AA, write the pair in the bracket. AA AB. Is there any possible combination? कोई और भी बना सकते हैं? No. So if you match this A with B, then only this combination is possible. So please write one possible combination is there, and due to this one possible combination, no GI is there, no symmetrical isomer can exist in the molecule. Fine. For example, if I draw the structure of the molecule, metal है, 3A बना देते हैं. Here we are making B, this is A. Fine. So I can fix one, and after that I will flip this. फ्लिप करने के बाद अगर मैं इसको फ्लिप करूं तब भी तो यही चीज आ रही है. ओके, सो नो नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स अगेन एंड अगेन. कल वाले लेक्चर में जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे तो वी आर गेटिंग कंफ्यूज्ड. ये इसको, ये इसको अगर यहाँ ले आते हैं तो चेक करिए व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स वी आर हैविंग. बी के पड़ोसी तो नेबर्स तो दोनों ए ही है ना, और यहाँ पे भी बी के पड़ोसी दोनों ए थे, यहाँ पे भी बी के पड़ोसी दोनों ए थे. तो नेबर्स सेम पड़े हैं, चाहे पोजीशन फ्लिप की भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा. दैट्स व्हाई नो जीआई इज देयर. सो यू कैन डू दिस बाय 2 टेक्निक्स. ईदर ड्रॉ द स्ट्रक्चर, बट दिस इज डिफिकल्ट फॉर यू, सो प्लीज ड्रॉ द पेयर्स दैट आई एम सेइंग. ये इजी रहेगा आप लोगों के लिए करना, एंड इट विल डू द, you can say it will give you the one number correctly in the paper. Fine. So the next type of thing is Ma2B2. ठीक है, अगला कॉम्बिनेशन Ma2B2. तो Ma2B2 का कॉम्बिनेशन बना के देखना है कि what we are having with the combinations. So please firstly make the line below it. Ligands के नीचे लाइन लगा लीजिए, इसको ओपन अप कर लीजिए. Again make the pair. Firstly we are having A with A bonding, then B with B bonding. तो ऐसा भी तो हो सकता है इसको ये पसंद आ जाए, इसको ये आपस में मैरिज कर ले. ठीक है, तो this 2 pairs can be possible. तो 2 combinations can be possible. जितने possible combination है, अगर एक से ज्यादा है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे, और वो कितने होंगे? जितने आप पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं. 2. आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, सो यहाँ पे हमारे पास Ma2B2 में 2 तरह की पॉसिबिलिटीज होंगी. एंड इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर, हियर A इज अपोजिट टू A and B is opposite to B, then this is trans. And if A is present with A and B is present with B, so this is a cis type structure. So this is trans, this is cis. So 2 GIs can be possible in the molecule. Now the third type of you can say the combination is 3 पढ़ लिए हमने. ठीक है, just wait, I have to check. Yes, 3 we have done. So this is the 4th type of combination that we are going to do. 4th में it is M A B C D. कई जगह पे इसको ऐसे लिखा जाता है. So don't worry about this kind of thing, both are same. So
So in this, metal is having the different type of ligand that are attached with it. So put a line below it. Now please open it, A, B, C, D. Make the pairs. Firstly इनके आपस में मैरिज करिए, A B के साथ, C को D पसंद आ गया, इससे मैरिज कर दी. फिर हो सकता है को C पसंद आ जाए, उसको पछतावा हो कि मुझे आपस में मैरिज कर लेनी चाहिए थी हम लोगों को, तो बना दीजिए इसको. ठीक है. और A D के साथ भी कर सकता था, BC के साथ भी कर सकता है. तो here we are having three possible combinations. Three possible combinations का मतलब है कितने GI होंगे यहाँ पे? GI तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, तो GI भी यहाँ पे 3 होंगे. So can I draw a diagram? So please wait. So I'm going to draw the diagram here. If I say metal is there, this is B, this is C, this is A. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऐसे बना दिया. उसके बाद मैंने इस तरीके से लिख दिया इसको. जस्ट वेट, प्लीज ड्रॉ इट. आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन. तो इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट किसी के भी माइंड में अब रहेगा आइसोमेरिज्म के लिए. ठीक है, ये वाला. तो अब चेक करिए, इंक मेरे को अलग से लेने दीजिए. यस, अगर मैं इन दोनों को फिक्स कर दूं, these two ligands are fixed and after that I flip this and this. यहाँ C आ गया, यहाँ D आ गया. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर A और B जिसको आप फिक्स करेंगे, अगर वो साथ साथ प्रेजेंट है, तो वो कौन सा आइसोमर होगा? सिस आइसोमर. ठीक है, क्योंकि सारे डिफरेंट है, कैसे पता चलेगा? तो दो को फिक्स करना पड़ेगा आपको. अब ये फिक्सिंग वाले अभी पास में ही थे, फ्लिप करने के बाद दोबारा क्या आया? फिर सिस आइसोमर. ये भी सिस की पॉसिबिलिटी है. एंड हेयर वी आर हैविंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशन. ये दोनों अलग अलग चले गए, तो दिस वन इज ट्रांस इन नेचर, ट्रांस आइसोमर. सो दीज आर द 4 सेटअप्स जो हमारे पास स्फीयर प्लेनर में होते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द चार्ट. जस्ट वेट फॉर 1 मिनट. सो प्लीज राइट डाउन स्फीयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. अभी हमने 4 कॉम्बिनेशंस पढ़े, तो वी आर गोइंग टू मेक द चार्ट फॉर दैट. So please write down. We are having MA4 type, we are having MA3B type, we are having MA2B2 type, and then MABCD. Now possible combinations कितने हैं और GI कितने हैं? Possible combination यहाँ 1 था, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था. यहाँ GI 1 है, तो 0 0, ये 2, ये 3. So this is all about the symmetrical isomers that can be present in the molecule which is having sphere planar shape. So please do the things accordingly. Okay, so hopefully ये आप लोगों को समझ आ गया होगा. Next हमारे पास अगर मैं एक क्वेश्चन आपको दूं, okay, so we are going to do one question based upon it. So question is, if I am having PT, NH3, PY, Br, Cl, and they are asking about how many symmetrical isomers can be present in this, and your options are 3, 4, 0, 2. Okay, so this is the thing कि आपको पूछा गया है कि कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे. सो लेट अस डू द थिंग्स अकॉर्डिंगली. फर्स्टली डोंट सी एट द लॉन्ग रेंज ऑफ द मॉलिक्यूल कि इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, करेंगे कैसे. दिस इज अ मेटल, वी नो दैट. मेटल के साथ ही एक तरह का, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, मींस चारों के चारों लिगेंड अलग है. आफ्टर दैट प्लीज मेक अ लाइन बिलो द लिगेंड्स, राइट द लिगेंड इन द ओपन फॉर्म, मेक द पेयर्स एज आई ऑलरेडी सेड, A B C D. After that what we can make, A की C के साथ, B की D के साथ, या फिर A की D के साथ और B की C के साथ भी कॉम्बिनेशन बन सकती है. So 3 possible combinations are there, and if 3 possible combinations are there, so GI is also 3. So option number 3 is correct. In this way you have to do the questions. Okay, so this is the case of square planar complexes. Now if I am talking about the, you can say, tetrahedral complexes, note down
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जितने भी हैं वो कौन से टेट्राहेड्रल है, कौन से स्क्वायर प्लेनर, वो आपको ऑलरेडी आता है। तो यहाँ के केस के लिए प्लीज लिखिए कि यहाँ पे एंगल हम यस सो अब हम बात कर रहे थे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, और यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में कोई भी जीआई नहीं होता। 10928 एंगल यहाँ पे फिक्स होता है, जिसकी वजह से कुछ मूवमेंट नहीं हो पाती, और जीआई यहाँ पे हमारे पास नो नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, टेट्राहेड्रल के केस में कभी भी सिमेट्रिकल आइसोमर नहीं होंगे। आंसर इज ऑलवेज 0 in that case. So please now we are going to take care of octahedral complexes. तो octahedral start करेंगे अब हम। ठीक है, पहले इससे पहले मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बता दूं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखो, पहले तो ये बता दें कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है। ऑलरेडी आई कन्वेड दिस थिंग इन द क्लास आल्सो इन द प्रीवियस लेक्चर कि ये होता क्या है। सो प्लीज देखिए, अगर हमारे पास कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट है, वो बीम में से जाने के बाद किसी सैंपल से आप पास करते हैं, एंड इफ लाइट इज गोइंग टू रोटेट इन राइट डायरेक्शन, तो उसको आप क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। इट इज रिटन विद स्मॉल डी एंड प्लस एल। और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में जाए रोटेट होने के बाद, योर कंपाउंड इज लीवोरोटेटरी इन नेचर and it is written with minus sign. Fine. So this is optical isomerism. अब हमारे पास अगर आप बात करेंगे कंडीशन की, पहली बात हमारे पास मेटल के पास 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं। हम स्क्वायर प्लेनर की बात या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 ग्रुप्स लगा दिए। पहले तो मेटल जो है वो हमारे पास कायरल होना चाहिए, कायरल सेंटर शुड बी देयर। अगर कायरल सेंटर है वो कब होगा, जब ए बी सी डी सारे के सारे डिफरेंट है। अगर कायरल सेंटर है तो फिर हम उसकी मिरर इमेज देखेंगे। कंपाउंड था हमारा, उसकी मिरर इमेज देखी। अब और ये दोनों पिक्चर्स अगर एक दूसरे के ऊपर फिट आ जाती हैं तो उसको बोलते हैं सुपरिम्पोजिबल, और अगर ये मैच ना करे तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन सुपरिम्पोजिबल। नॉन सुपरिम्पोजिबल का मतलब हमारे 2 हैंड्स थे, ठीक है, हैंड है, हैंड की पिक्चर देखी तो पिक्चर में हमारे पास इस तरीके की पिक्चर आई, तो अगर इस पिक्चर को मैं इसके ऊपर रख दूं तो ये सुपरिम्पोज नहीं कर रही। ठीक है, चाहे कायरल सेंटर है, उसके बाद आपको मिरर में देखना पड़ेगा। अगर वो पिक्चर एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर फिट बैठ रही है, इट इज गोइंग टू बी सुपरिम्पोजिबल, देन इट इज नॉट ऑप्टिकल एक्टिव। यहाँ पे फिर ऑप्टिकल एक्टिव वो नहीं होगा। नॉन सुपरिम्पोजिबल है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी यहाँ पे होगी। ये हमारी है रिक्वायरमेंट। सो लेट अस डू द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बनाऊं आपका, तो प्लीज वेट। अगर मैं कंपाउंड ड्रॉ करूं, ठीक है, अगर मैं सेम के सेम ले लूं, ये वाले, इसको मिरर में देखा तो हमारे पास यही था, इसकी पिक्चर सेम ही आ जाएगी। और अगर इसको इसके ऊपर डाला तो वो फिट भी हो रही है, कहने का मतलब सुपरिम्पोजिबल भी है। तो सुपरिम्पोजिबल तो हमारे पास ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, ये हमने कर लिया। फर्स्ट क्राइटेरिया, अगर लिगेंड सेम है, Ma4 टाइप का मॉलिक्यूल है, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। देन द सेकेंड टाइप ऑफ थिंग इज, अगर हमारे पास सारे के सारे लिगेंड अलग हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही ये है, बिकॉज वी हैव टू get the 4 ligands that is attached with ligand, it should be different. okay, ये चारों के चारों ग्रुप्स हमारे पास डिफरेंट होने चाहिए। if it is different then only the metal is acting as chiral center, and after that if we see the picture in the mirror, what will happen, this group D group comes here, C here, B here. now please shift this structure over it. Now it is not सुपरिम्पोजिबल, ये एक दूसरे के ऊपर 100% फिट होके नहीं बैठती। कायरल सेंटर भी था, सुपरिम्पोजिबल भी नहीं थे। इन दैट केस वी आर हैविंग ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इस केस में हमारे पास होगा।
So this is the case कि आपने ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे चेक करनी है. Now we are having the case of octahedral complexes. So this is the third case which we are doing. Okay, so this is case number third. So optical isomerism in the case of octahedral complexes, it can be present in 6-7 formats. ये वाला फॉर्मेट हो सकता है, एक कम कर दीजिए A5B लिगेंड लगे हुए हो सकते हैं, एक और कम करिए A4B2 टाइप का सिस्टम हो सकता है, MA3B3 टाइप का सिस्टम हो सकता है. फिर चेक करना, MA3 को तो उतना ही रखा, B को एक कम कर दिया, C लगा दिया, फिर MA3 इसको और कम कर दिया, BCD बना दिया, और 7th टाइप में MA2B2 C2 इस तरह का कॉम्बिनेशन लगा के मैंने आपको दे दिया. ठीक है जी. तो इस तरीके की कॉम्बिनेशंस के लिए अब बनाने हैं आपने कॉम्बिनेशंस, और कॉम्बिनेशन से आपको चीजों का पता चलेगा कि किस तरीके से आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालने हैं. सो फर्स्टली आई एम राइटिंग MA6 टाइप. ओके, MA6 टाइप. तो लेट अस स्टार्ट MA6 टाइप. ठीक है, तो फर्स्टली वी हैव टू राइट, लाइन मारनी है लिगेंड के नीचे. 6 लिगेंड थे. आई एम राइटिंग लाइक दिस. मेक द पेयर्स एज वी हैव डन इन द प्रीवियस मॉलिक्यूल्स. तो ये कॉम्बिनेशन बन गया. इज देयर एनी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन दैट कैन बी फॉर्म्ड विद दिस A6? नो, only one possible combination is there. If one combination is there, we know that no GI is there. तो GI यहाँ पे नहीं होगा. ठीक है जी, प्लीज लिख लीजिए नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है तो हमारे पास सिस ट्रांस नहीं बनेंगे. सेकंड, सो प्लीज नोट वन ट्रिक फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी. ट्रिक फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, सीधा कैसे चेक कर सकते हैं हम अपने कंपाउंड्स में कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं. उसके लिए आपने ये चीज याद रखनी है प्लीज. अगर तो हमारे मॉलिक्यूल में सेम लिगेंड आ जाए, फॉर एग्जांपल A इस तरीके का, और एनी 2 पेयर्स आर सेम, फॉर एग्जांपल AA इस तरीके का पेयर, ऑक्टाहेड्रल है ना, तो 3 पेयर तो बनेंगे ही बनेंगे. 3 पेयर में से कोई भी 2 पेयर अगर सेम आ जाए तब भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी. तो इन बोथ द केसेस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकल inactive. Fine. So no optical isomerism is there in these 2 tricks. Please mention that. ठीक है, अब देखना क्वेश्चन किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट हमने कर लिया. द सेकेंड टाइप ऑफ थिंग इज MA5B. Okay, so and third type I will write here because after that I have to change the ink. MA4B2. ये हमारे पास 3 तरह के कंपाउंड है, 7 तरह के बेसिकली कॉम्बिनेशंस बनते हैं. तो प्लीज सी दैट. अब यहाँ पे इसके नीचे लाइन लगाइए पहले, फिर इसके कॉम्बिनेशंस लिखिए. 5 है ये, 5 लिख लीजिए B. तो कॉम्बिनेशन बनाइए AA AB. So is there any particular combination that you can form? No, only no other combination is possible. उसके बाद हमारे पास 1 कॉम्बिनेशन है, तो GI is 1. फाइन, GI is 1. नाउ चेक द ऑप्टिकल एक्टिविटी है या नहीं है. 2 ट्रिक्स बताई थी आपको, प्लीज चेक. ट्रिक के हिसाब से 2 पेयर यहाँ पे सेम है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी, ये इनएक्टिव है. ठीक है, तो दिस इज द वे हाउ टू प्रोसीड द क्वेश्चन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी एज वेल एज GI इन द केस ऑफ octahedral complexes. Now here we are having 4A 2B. So please make the combinations. Possible combination is AA BB. Now AA AB BAB. So these are the 2 combination. 2 possible combination है तो 2 ही symmetrical isomerism होंगे. Check the optical activity. Is there any optical activity? Check the tricks. यहाँ हमारे पास
दो पेयर सेम आ गए, ये तो नहीं होगा, यहाँ भी दो पेयर सेम है, फिर सारे कॉम्बिनेशन का अलग अलग चेक करना होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो यहाँ ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। फाइन, सो प्लीज गो थ्रू द कंसेप्ट्स जितने भी मैंने आपको समझाए हैं। अब मेरे को नहीं लगता कल कोई प्रॉब्लम होगी अब इस लेक्चर में, कल पढ़ाते पढ़ाते वॉल पे मैंने आपको बताया था, एंड दैट इज डिस्ट्रैक्टिंग द mind of me in the whole lecture, that's why the problem is there. Okay, so बच्चों ने बताया कि कल का लेक्चर समझ आ गया था, बट फिर भी मैं ये दोबारा बना रही हूँ so that you can get the clarity. Okay, so फोर्थ और फिफ्थ कॉम्बिनेशन बनाइए जी, किस तरीके से बनेगा ये, आ जाइए देखो, A A A B B C A A A B B B. So what are the possible combination? Please make the possible combination in your copy. So this is A A A B B C. Now A C A B A B. Okay. So these two combinations I have made. तो तीसरा बन सकता है? Yes, we can make AA AB BC first combination. Second बन गया हमारा AC, then AA, then BB. These three combinations can be possible. तो GI हमारे पास कितने होंगे? 3. तो ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी प्लीज चेक। ओके, और यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए ऑलरेडी बता रखा है आपको कि आपको अकेला अकेला कॉम्बिनेशन चेक करना पड़ेगा। यहाँ दो लिगेंड सेम है, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। यहाँ दो पेयर सेम आ गए, ऑप्टिकल इनएक्टिव। यहाँ पे चेक करिए, दो लिगेंड सेम है, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी यहाँ नहीं होगी, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव मॉलिक्यूल है। सो प्लीज गो थ्रू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे हमको क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाइए ए ए ए बी बी बी, फाइंड फर्स्ट कॉम्बिनेशन एंड देन वी कैन मेक ए बी, ओके, ए बी कॉम्बिनेशन। सो ओनली टू पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर देयर। जीआई दो होंगे, चेक करिए ऑप्टिकल एक्टिविटी मॉलिक्यूल में है या नहीं है। तो फॉर दिस यू हैव टू चेक थ्रू द लीगेंड ट्रिक्स दैट आई हैव गिवन यू। तो चेक करो, यहाँ दो लीगेंड सेम है, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव, नो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज देयर, ओवरऑल ऑप्टिकल इनएक्टिव इन नेचर, ये भी इनएक्टिव है। फाइन, सो नेक्स्ट ओनली टू आर लेफ्ट। सिक्स टाइप M A3 B C D, तो इसको चेक करते हैं। ओके, सो प्लीज गो थ्रू इट। So I am going to use different color ink. यहाँ पहले कॉम्बिनेशन लिखिए A A A B C D, ये ऑप्शन बन रहे हैं। Then we have to make the pairs. Pairs कैसे बनेंगे? दो दो के पेयर बनाइए, A A A B C D. Is there any combination? This is the first combination. Yes. A A remains same. A को C के साथ बाइंड कर दिया, B को D के साथ कर दिया। नाउ ए को सेम रख लिया, ए को मैं डी के साथ बाइंड अप कर लूं, देन सी को मैं बी के साथ कंबाइन कर लूं। दिस इज द कॉम्बिनेशन। नाउ वी कैन डू ए बी लिंकेज, ए सी लिंकेज एंड ए डी लिंकेज। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। विद दिस कॉम्बिनेशन वी गॉट रियलाइज दैट 4 combinations are possible. That's why 4 type of symmetrical isomerisms are there. 4 तरह के स्ट्रक्चर यहाँ पे मॉलिक्यूल में बन सकते हैं। एंड नाउ प्लीज गो थ्रू द ऑप्टिकल एक्टिविटी चेकअप। सो प्लीज चेक दिस, 2 ligands are same, optical inactive in nature. Here optical inactive in nature, again optical inactive in nature. Here no 2 combos are same और ना ही कोई पेयर सेम है। सो दिस कैन बी ऑप्टिकल एक्टिव, this can be optical active. And please listen carefully, if this is optical active, we know that 2 type of optical activities can be there, dextro and LIGO. So what we will write, optical active isomer, how many optical isomers are there that are active? So you can write 2. दोनों, एक अगर है एक्टिव आया आपका तो उसका भी D and L आपने कैलकुलेट करना है। एक आया था ना,
तो उसके दोनों कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करने हैं एंड दिस इज 2 इन द आंसर. फाइन. So overall we are having 3 optical inactive and 1 optical active, and in this 2 forms are there and 2 is there. So one more combination, total stereoisomers may be, in sometimes they can ask this type of question, how many total stereoisomers are there. This is optical active plus total लेना है optical active का और inactive का. एक्टिव कितने हैं हमारे पास, 2 आए थे, इनएक्टिव कितने हैं, 3. तो टोटल स्टीरियोआइसोमर्स आर 5 in the combination. So this is the answer of the complex. Okay, so last complex I am going to give you, so you have to do the practice of this thing कि आपको समझ आ गया या नहीं. तो 7th type I am going to give you Ma2 B2 C2 type of complex. तो इसको आपने निकालना है कि इसका कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या बनेगा. फाइन. तो चेक करिएगा, ठीक है, फिर पता चल जाएगा आपको. तो जस्ट वेट, आई विल मेक द कॉम्बिनेशंस. यहाँ A A B B C C. We can do A linkage with B and A with B then C C. ऐसा भी तो हो सकता है, A can go with C, okay, B can go with C and A B. Any another combination possible? No. So this is the type. यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में आते हैं. So please do the things accordingly. Very very important. इसके कॉम्बिनेशन और भी बन सकते हैं, बना के देखिएगा, ठीक है. तो आप मेरे को रिपोर्ट करिएगा कि इसके कितने बन रहे हैं, कितने जीआई आने चाहिए, कितने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक्टिव हैं, स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं. तो जो भी चीजें मैंने करवाई है यहाँ पे, ऑप्टिकल इनएक्टिव कितने हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कितने, सारे का सारा आंसर you can drop the message to me in the section. And one more thing I want to tell you, जो M3B3 टाइप मैंने आपको लिखवाया था, ये हमारे पास GI तो 2 ही शो करता है, ये हमें पता है, बट ये फेशियल और मैरिडोनियल, वहां दोनों को सिस ट्रांस नहीं बोलते, फेशियल और मैरिडोनियल बोलते हैं. So this is the only difference between MK3B3 type of complexes. So let us do 1 or 2 questions. After that, I will wind up my video. Okay. So if we are taking the complex FeCN6 3 negative. Okay. The second type of question is CrNH3 3 Cl thrice. ये वाला क्वेश्चन था. Another type of question PtNH3 4 Cl2. तो इसके कितने GI बनते हैं वो निकालने हैं. तो प्लीज डू दैट. यहाँ पे Ma6 टाइप है, एक ही तरह के सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे. AA linkage, AA linkage, AA linkage, only one possible combination. GI is 0 in this case. Fine. Now in the second molecule we are having Ma3B3. अभी बताया फेशियल मैरिडोनियल वाली साइड 2 ही GI होते हैं, अब याद भी हो जाएगा आपको. हाउ टू डू दिस, AAA BBB. नेवर ऑपरेट दिस थिंग इन द कॉम्बिनेशन. सीधा इसको पहले इस फॉर्म में लिखिए फिर करिए, और ना ही आपको कोई स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, क्योंकि उससे क्वेश्चन गलत हो जाता है. तो दिस कॉम्बिनेशन इज देयर एंड वन मोर कॉम्बिनेशन AA AB BB. तो 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 2 GIs आर देयर. और ऑप्टिकल इनएक्टिव है ये, क्योंकि दोनों में हमारे पास रेपिटेशन हो रही है, और ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव है. सो प्लीज गो थ्रू द थर्ड क्वेश्चन. यहाँ पे हमारे पास Ma4B2 टाइप का सिस्टम है. तो लिख लीजिए, ये 4 है, ये B थे, कॉम्बिनेशन बनाइए AA AA BB, then AB AB, then AA. So only 2 combinations are there. So GIs are 2. And is there optical active or inactive? ये optical inactive है, repetition है 2 ग्रुप्स की, यहाँ पे भी 2 ग्रुप्स की repetition है, optical inactive in nature. So in this way you have to do the questions. Okay. So last question that I am going to repeat. ठीक है. तो ठीक है जी. तो होपफुली सारा समझ आ गया होगा. क्वेश्चंस की अलग वीडियो बना दूंगी, काफी लंबी हो गई है. होपफुली आपको समझ आ गया होगा, और अगर लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर बताना.
और अगर कोई डाउट हुआ तो क्लास में पूछ लेना। सो बाय बाय एवरीवन।